morning, everybody. Welcome to Lossico's Daily News Analysis. Today is 13 June 2020, and the topics that we'll be covering for today are Streamlined Education is Diluted Education. This article is written by Ashwin Jayanti, who's an assistant professor in IIT Delhi, IIT Hyderabad, and he discusses the pros and cons of online education. And he says that this is a diluted system of education. So it's totally his opinion, and we'll be talking about this. The second article for today is a welcome waiver. This talks about the recent Supreme Court order on telecom issues. Thirdly, the article is called Don't Blame the Bar. It is written by Kapil Sibal, who's a senior advocate in the Supreme Court of India, and we will talk about the judicial system in India a little bit through this article. So the first article for today, that is Streamlined Education is Diluted Education. तो ये आर्टिकल बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करता है, स्पेसिफिकली ऑनलाइन एजुकेशन इन हायर स्ट्रैटा ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आ रहा है धीरे धीरे, उसकी बात करता है. और ये पूरा इसमें ओपिनियनेटेड पीस है जो हमारे राइटर हैं उनके ओपिनियंस पे बेस्ड है. So how do we come to this topic? Firstly, let's talk about that. So COVID-19 चल रहा है, and following that, there's a nationwide lockdown that we have all gone through. अब धीरे धीरे open हो रहे हैं institutions, markets, and other places, but still the educational institutes अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं. Colleges specifically, जो higher education के institutes हैं, or even schools, they have not opened fully because ज़्यादा वहाँ पे social distancing maintain करना becomes difficult. So to keeping that in mind, recently UGC जो है हमारा University Grant Commission, UGC ने एक circular issue किया है universities के लिए, and in that circular UGC has said that it has encouraged universities basically to adopt something called MOOC. Now, what is MOOC? MOOC basically एक system है जिसमें इसको बोलते हैं Massive Open Online Courses. तो MOOC ये बोलता है कि online courses को आप encourage करिए, give online education, online courses to whoever seeks such courses. And UGC has said to colleges, to universities, that MOOC should be put up on a platform called Swayam, जो UGC ने create किया है. So this is the whole initiative that UGC has come up with, and through this initiative उन्होंने educational institutes हैं, higher education के जो institutes हैं, universities हैं, उनको बोला है to put up online courses on the Swayam platform. Now इससे क्या होगा that we have seen the college sessions जो usually August तक start हो जाते थे, they have been delayed. Now they will not start in August, and most probably September or October. We don't know with certainty yet, but colleges might opening in September. But till then, UGC has suggested to put up online courses because we don't know which way corona virus will take us. So to be on the safer side, MOOC is being encouraged. Now the author talks about the cons of this online education system. वो ये बोलते हैं कि ये तो सच है that लॉकडाउन चल रहा है and we can't totally put off our online learning. तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है, but then he says online education in general ends up diluting education. तो ये dilution of जो education है through online education, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. बेसिकली वो कंपेयर करते हैं दिस होल सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन विद हेलमेट. तो उन्होंने कहा है कि हेलमेट के दो पर्पस हो सकते हैं. पीपल कैन यूज इट इन टू वे. पहला पर्पस ये हो सकता है दैट पीपल आर यूजिंग इट टू प्रोटेक्ट देयर हेड, जो कि टेक्निकली इज द पर्पस ऑफ अ हेलमेट. द सेकंड पर्पस ऑन द अदर हैंड इज दैट पीपल आर यूजिंग इट टू प्रोटेक्ट देयर वॉलेट्स. वॉलेट कैसे? बिकॉज traffic guidelines say that you have to wear a helmet. If you will not wear a helmet, तो फिर आप पे फाइन लगाया जाएगा. तो उस फाइन से बचने के लिए people wear helmet, which in essence is to protect their wallet. तो ये दो पर्पस होते हैं जिससे लोग अपने अपने हिसाब से एक हेलमेट को यूज करते हैं. अब इस हेलमेट की एनालॉजी को उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पे अप्लाई किया है.
तो जो पहला पर्पस ऑथर बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का है, जिसको हम प्रोटेक्टिंग हेड, जो हेलमेट का हेल्थ प्रोटेक्ट करने का जो पर्पस है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है। टू एजुकेशन का जो पर्पस है वो है टू प्रोवाइड अ होलसम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल। और ऑथर बोलते हैं कि जो होलसम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ये खाली एक क्लासरूम में ही मिल सकती है, बिकॉज क्लासरूम इन एसेंस, स्पेसिफिकली इन हायर एजुकेशन, जब आप कॉलेज जाते हैं क्लासरूम इज अ फील्ड। एंड अगर आप क्लासरूम में जाएंगे डिस्कशंस होंगे। आज आजकल एज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज इवॉल्व, वी हैव लर्न दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ टीचर गिविंग आउट कंटेंट टू अ स्टूडेंट। मतलब ये खाली एक वन वे प्रोसीजर नहीं होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक कंज्यूमर होते हैं जिनको कंटेंट दिया जाता है एक साइडेड। Rather, it's a whole Socrates method of teaching, where discussions करके, critically analyze करके, जहाँ पे education को बढ़ावा दिया जाता है। और ये सारा सिस्टम एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ही क्रिएट हो सकता है, जो कि एक फील्ड, एक लैब की तरह काम करता है फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो आइडियाज में क्रिटिकली एंगेज करते हैं आइडियाज में। एंड देन ऑथर ये बोलते हैं कि इसको हम किसी भी अदर एक स्पोर्ट की तरह देखा जा सकता है। जैसे जिस तरह से आप क्रिकेट को या फुटबॉल को ऑनलाइन नहीं बना सकते, ऑनलाइन बना भी देंगे तो उसका पूरा प्रॉपर पर्पस सर्व नहीं होगा, उसी तरह से एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन को अभी ऑनलाइन करके पूरा प्रॉपर उसका पर्पस सर्व नहीं हो सकता है। इट कैन, द फुल पर्पस कैन बी सर्व्ड ओनली इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। एंड ये जो यूजीसी सर्कुलर है, इसने सारे कोर्सेज को एमओओसी लाने के लिए encourage नहीं किया है। It has said, it says, the circular says कि certain courses जैसे कि medical, engineering, agriculture, architecture, ये वाले courses को online करने की जरूरत नहीं है, but other courses like arts and social sciences, they can be taught through MOOC. Author critically analyzes that also. तो ऑथर इसमें बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सोशल साइंसेज और आर्ट्स के जो कोर्सेज हैं इनको हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इवन ये वाले जो कोर्सेज हैं सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स के, दे आल्सो नीड अ क्रिटिकल डिस्कशन एंड एंगेजमेंट ऑफ आइडियाज, जो कि एक क्लासरूम में ही हो सकता है, जो एक लैब का काम करती है इन सारे कोर्सेज के लिए। तो इसीलिए अगर हम एजुकेशन को इस एजुकेशन को जो क्लासरूम में होता है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन से, तो ये एजुकेशन का मेन पर्पस नहीं सर्व कर पाएगा। और हेलमेट की एनालॉजी लगाते हुए ये बन जाएगा वो सिस्टम जहाँ पे हम एजुकेशन को ऑनलाइन बना रहे हैं क्योंकि हमें एक पेनल्टी से बचना है, और पेनल्टी इस सिस्टम में है GER। अब GER क्या होता है? GER इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एंड बेसिकली हर देश में हर साल कैलकुलेशन होती है कि कितने लोगों ने एजुकेशन में एनरोल किया, टू जस्ट डिटरमाइन कि कितने लोग एजुकेशन का क्राइटेरिया में द कंट्री कैसा काम कर रही है, हाउ द कंट्री इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। तो ऑथर का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन ये सिस्टम तो अच्छे से सर्व करेगा दैट the required number of people will be registered online, and therefore the GER जो gross enrollment ratio है इंडिया का, वो हमारा जो appropriate ratio needed है वो हमें achieve हो जाएगा online registration। But the essential purpose of education will not be served through online education। और यही बताते हुए ये हेलमेट की एनालॉजी यूज करके ऑथर एंड में बोलते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज वी कैन नॉट पुट ऑफ एजुकेशन, बंद नहीं कर सकते हैं, एंड अभी हम इंस्टीट्यूशंस खोल नहीं सकते हैं। बट इन द लॉन्ग टर्म ये स्ट्रैटेजी यूज करना ठीक नहीं है, बिकॉज ओनली क्लासरूम्स एक्ट एज अ लैब जहाँ पे एजुकेशन को पूरी तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। The second article for today is the AGR issue. तो AGR होता है बेसिकली एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और ये टेलीकॉम की जो हमारी कंपनीज है, टेलीकॉम का जो एरिया है, इंडस्ट्री है, इसमें आजकल AGR का बहुत डिस्कशन हो रहा है। तो वी विल इनिशियली अभी हम डिस्कस करते हैं कि AGR और ये पूरा इश्यू जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो चल रहा है, व्हाट इज दिस होल इश्यू अबाउट, and then we will talk about what the latest Supreme Court
order with regard to this issue is. तो AGR क्या है? तो बेसिकली 1994 में टेलीकॉम जो सेक्टर है it got liberalized in the sense that private companies started coming up, companies को licensing मिलने लगे कि वो अपने license लेके अपनी own private individuals अपनी companies set up कर सकते हैं. So this whole liberalization of telecom sector took place और ये सब हुआ नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के अंदर जो 1994 में आई थी हमारे देश में. अब लाइसेंसेस मिलने लगे एज अ नॉर्मल प्रोसीजर. जब आपको लाइसेंस मिलता है तो एक लाइसेंस फी देनी पड़ती है. सो से फॉर एग्जांपल वोडाफोन का नाम ले लेते हैं. जैसे अगर कोई कंपनी है ए, इट वांट्स अ लाइसेंस, तो उसको लाइसेंस फी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को एंड देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द लाइसेंस. दिस इज द यूजुअल प्रोसीजर. लेकिन लाइसेंस फी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी. तो गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला? दे सेड दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग लाइसेंस फी एक बार में ही, मतलब जब आप रजिस्टर कर रहे हो उस टाइम पे लाइसेंस फी देने की बजाय आप AGR अडॉप्ट करो, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. इसका मतलब कि जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट बनाती जाएगी उस प्रकार से उसमें से उसके रेवेन्यू में से इट कैन पे सर्टेन पोर्शन टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो होता है उसको गवर्नमेंट AGR पे कर, उसको कंपनीज AGR पे करती जाएंगी जैसे जैसे वो प्रॉफिट अर्न करती जाएंगी. So this system was developed and every year the registered licensed companies had to pay a certain amount of AGR to the government, to the Department of Telecommunication. Now over time 1994 से आगे तक लेके companies started getting licenses, लेकिन AGR जो है ये गवर्नमेंट को देना कम हो गया एंड धीरे धीरे लास्ट ईयर तक आते आते द अमाउंट ऑफ AGR ये सारा अक्यूमुलेट हो गया क्योंकि कंपनीज गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट AGR पे नहीं कर रहे थे और भी काफी सारे इशू थे. डेफिनेशन AGR की क्लियर नहीं थी कि क्या क्या इंक्लूड होगा. तो इस वजह से AGR अक्यूमुलेट हो गया और अब कंपनीज पे बहुत बड़ा बर्डन आ गया है कि कितना AGR हमें पे करना है गवर्नमेंट को. So all this happened, the companies came in debt of the government. गवर्नमेंट के ड्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. 2019 में आके एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया जहाँ पे AGR की डेफिनेशन क्लियर हो गई एंड वो डेफिनेशन क्लियर करके सारा कैलकुलेट करके अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट इन टोटल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 92,000 करोड़ टू गवर्नमेंट इन बैक चार्जेस. तो 92,000 करोड़ का जो चार्ज है ये एज इन AGR सारा टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं they owe to the government. Now this is a huge amount and which is why the financial ramifications of this are huge. अब जो 92,000 करोड़ का जो डेट है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, they eventually have to pay it. लेकिन ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि जब कंपनीज पे करेंगी या फिर आजकल की फाइनेंशियल जो सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी जो हमारी डाउन चल रही है, इसको देखते हुए लगता है अगर कंपनीज नहीं पे कर पाएंगी तो फिर द होल टेलीकॉम सेक्टर एंड एज अ रिपल इफेक्ट पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकता है. तो दिस इज व्हाई दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि कई कंपनीज ऐसा भी हो सकता है AGR ना पे कर पाए और वो बैंकरप्सी में चले जाए. उनकी वजह से उनके दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं उन पे नुकसान होगा. इसकी वजह से कंपटीशन में डिसरप्शन आ सकता है क्योंकि काफी सारी जो छोटे छोटे टेलीकॉम कंपनीज हैं हो सकता है वो बैंकरप्सी में चले जाए जिसकी वजह से खाली 2-3 मेजर कंपनीज ही रह जाएंगी. जियो फॉर एग्जांपल, जियो का हम मान सकते हैं कि बैंकरप्सी में तो नहीं जाएगा रिलायंस जियो, बट इट कैन फॉर्म अ मोनोपोली जिसकी वजह से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए टेलीकॉम के एरिया में प्राइसेस बढ़ सकते हैं. तो दिस इज द होल रैमिफिकेशन ऑफ इट. और ये रिसेंट जो अभी थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इंद्रे मंदार देशपांडे है केस का नाम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि नॉन टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनको कोई AGR नहीं पे करना है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको AGR पे करना है. और इसीलिए ये जो टेलीकॉम पूरा सेक्टर है इसमें घबराहट छाई हुई है because this huge amount that they have to pay to the government is a big issue for them. And even though जनवरी में इस साल 2020 में एक ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट उन्होंने लीवे दे दिया, टाइम दे दिया इन कंपनीज को AGR पे करने के लिए, बट स्टिल द अमाउंट स्टिल इज ड्यू और पे तो करना ही है. एंड इसके जो रैमिफिकेशन आएंगे सबके ऊपर,
they are something that have to be looked forward to. The last article for today is court and the bar. तो ये आर्टिकल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो हैं कपिल सिब्बल, मिस्टर कपिल सिब्बल, उन्होंने लिखा है। एंड इस आर्टिकल में बेसिकली वो ये बात करते हैं कि किस तरह से लीगल सिस्टम को जो हमारा कभी भी लीगल सिस्टम पे जो क्रिटिसिज्म आता है, वी डोंट जस्ट नेसेसरीली नीड टू ब्लेम द बार, रादर जुडिशरी को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो आजकल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है सेवरल एरियाज ऑफ जुडिशरी में, काफी डिसीजंस पे किस तरह से मैकेनिज्म पूरा चलता है, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। और मिस्टर कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि जुडिशरी को खुद अपने जो प्रोसीजर्स हैं, जो डिसीजंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करके, उनको क्रिटिकली एनालाइज करके इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो इसे कि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वली फॉर द लिटिगेंट एज वेल एज द लीगल फ्रेटर्निटी। लिटिगेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब कोई लिटिगेंट है, से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लिटिगेंट, मैं एंड तक कोर्ट नहीं जाऊंगी बिकॉज कोर्ट प्रोसीजर्स आर सो कॉस्टली। ये तो हम सब जानते हैं, फाइलिंग फीस जो लगती है कोर्ट में, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली, लॉयर्स को हायर करने की फीस होती है। तो अल्टीमेटली जब मैं कोर्ट जाऊंगी, it will be because I am tired and I don't I don't have any other way to go to, and इसलिए मैं कोर्ट जा रही हूँ। तो लिटिगेंट बहुत ही होप के साथ फाइनली फाइनल रिजॉल्ट कोर्ट में आता है, एंड बिकॉज द लिटिगेंट कम्स विद सच अ होप, इट इज नेसेसरी कि जुडिशरी भी उसको होप दिखाए एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन दे। सिमिलरली लीगल फ्रेटर्निटी जो है, हमारे जो लॉयर्स हैं और क्लर्क्स हैं, एवरीबडी इंक्लूडेड इन द लीगल फ्रेटर्निटी, उनका पूरा सर्वाइवल डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह से फंक्शन करता है, एंड द होल प्रोफेशन विल बी jeopardized अगर कोर्ट ठीक से नहीं फंक्शन करेगा। So he says that litigants as well as the legal fraternity both depend on the judiciary and therefore judiciary needs to act independently. अब इसमें ये हाईलाइट करते हैं मिस्टर कपिल सिब्बल कि क्या-क्या एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो he says लिस्टिंग जब होती है मैटर्स की, इट्स पार्ट ऑफ अ लीगल प्रोसीजर कि आप जाएंगे, आप कोर्ट में अपना मैटर लिस्ट कराएंगे, एंड देन इट विल कम इन फ्रंट ऑफ अ पर्टिकुलर बेंच वेयर योर हायर लॉयर्स विल हैव टू फाइट योर आर्ग्यू योर मैटर्स। तो वो बोलते हैं लिस्टिंग का जो केस जब आपको जाना होता है कोर्ट लिस्ट कराने के लिए, वहां पे काफी सारा एसिमेट्रिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को तो जब वो मैटर लिस्ट कराने के लिए जब वो फाइल करते हैं मैटर, अगले दिन ही लिस्ट हो जाता है, एंड कई लोगों के लिए दे कीप गोइंग पिलर्स टू पोस्ट और तब भी उनका मैटर लिस्ट नहीं होता है किसी भी बेंच के सामने। तो ये जो एसिमेट्री है कोर्ट के प्रोसीजर में ऑन हाउ द मैटर्स गेट लिस्टेड, ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, एंड दिस शुड बी फिक्स्ड। सेकेंडली ही सेज कि हियरिंग में भी एसिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेटल्ड प्रिंसिपल होते हैं जिसकी वजह से हियरिंग ऐसा डिसाइडेड होता है कि किसी मैटर की हियरिंग कितने दिन बाद होगी। फॉर एग्जाम्पल हैबियस कॉर्पस जो पिटिशन आती है, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट टू लाइफ का बात होता है इसमें एक इंसान के, इसीलिए ये माना जाता है एज अ सेटल्ड प्रिंसिपल कि हैबियस कॉर्पस पिटिशन जब भी वो मैटर फाइल होगा उसके एक दिन बाद लिस्ट की जाएगी और उसकी हियरिंग एक दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है इन प्रैक्टिस कई बार जब ऑपोजिशन लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी मैटर में, तो हैबियस कॉर्पस पिटिशन जिसमें फंडामेंटल राइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इवन दैट इज नॉट हर्ड फॉर अ नंबर ऑफ डेज, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जो कि सेटल्ड है, देन वी शुड फॉलो इट यूनिफॉर्मली फॉर एवरीबडी। थर्डली ही सेज कि जो मैटर्स की लिस्टिंग है, मतलब किस सब्जेक्ट मैटर की लिस्टिंग किस हिसाब से होगी, उसमें भी एसिमेट्री है हमारे जुडिशियल प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल रैमिफिकेशंस के मैटर होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, जिनको इमीडिएट लिस्ट करने की जरूरत होती है, जिनकी इमीडिएट हियरिंग की भी जरूरत होती है, लेकिन दे डोंट गेट हर्ड इमीडिएटली। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल लेना होगा तो रिसेंट अभी जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ है पूरे देश में, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ इट वाज सच एन अर्जेंट इशू दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव हर्ड इट immediately as soon as the crisis starts,
लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ डीलिंग हुई वेयर इट वाज सेड दैट द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द इशू एंड ओनली व्हेन certain failures were occurring in the public, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम बाद जाके सुमोटो कॉग्निजेंस लिया इस मैटर का, मतलब डिले हुआ। इवन दो ये मैटर था एक नेशनल इंपॉर्टेंस का, इसमें डिले हुआ एंड नहीं होना चाहिए था, ये मैटर इमीडिएटली लिस्ट होना चाहिए था। तो यही बोलते हैं मिस्टर कपिल सिब्बल कि ऑल दीज इश्यूज जो कि जिनके लिए एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, लेकिन ये सेटल्ड प्रिंसिपल फॉलो नहीं की जाती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट और बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर मैटर्स, जो भी इंटरनल जुडिशरी का मामला है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। Another example that he takes is he says that 2018 में 4 judges की press conference हुई थी, which was a landmark press conference and it had never happened before in the history of the Supreme Court. And because it was such a landmark conference, we can now understand that there are certain issues which are internal to judiciary and we need to be resolved. Similarly, टाइम एंड अगेन कोई रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स करते हैं, दे पब्लिश आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स, दे कमेंट ऑन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऐसा तो होता है, आई मीन क्रिटिकल कमेंट्स आर बीइंग रेज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। ऑन द अदर हैंड, we also see that transfers of judges take place overnight, and such other instances also happen which make us raise questions on the judiciary. तो अल्टीमेटली ऑथर का जो मिस्टर कपिल सिब्बल का पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल से, वो ये है कि वी हैव सर्टेन सेटल्ड प्रिंसिपल्स, एक सिस्टम बनाया हुआ है जुडिशरी के फंक्शन के लिए। नाउ क्योंकि सिस्टम बनाया हुआ है, कोर्ट को उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग फंक्शन करना चाहिए, लेकिन हमने इंस्टेंसेस देखे हैं टाइम एंड अगेन जब ये प्रोसीजर्स को जंप कर दिया जाता है एंड लीवे इज टेकन बिकॉज government officials are involved or opposition leaders are involved or judges themselves are involved in certain matters, और इसकी वजह से इन प्रोसीजर्स की जो सैंक्टिटी है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। यही बोला ऑथर ने कि इस प्रोसीजर को, सैंक्टिटी को नहीं इग्नोर करना चाहिए, because all these procedures are important for litigants as well as the whole legal fraternity, and अगर जरूरत पड़े तो जुडिशरी को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके वापस इस जो प्रोसीजर्स द्वारा लेट डाउन रूट है उस पे आ जाना चाहिए, rather than अगर कोई जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता है by taking it as an insult, they should rather use that opportunity to introspect and to be back on the track. Thank you. That was all for today. The quiz question is, what does AGR stand for? Annual gross revenue, adjusted gross revenue, alternate gross revenue, alleviated gross revenue. Thank you.